Please. Madam Speaker, when for the second time the Congress party wanted to raise the issue of Rafale, we had all thought that there is something very significant they have to say. But I must say, after hearing the lead speaker on behalf of the Congress party, we are all utterly disappointed. The country is disappointed because every word he has said is something which is belied in the face of the judgment of the Supreme Court. Normally, as a society where judicial review is the last resort, when the Supreme Court speaks on every issue, that is treated as the last word, except for the jurisdiction of the legislature in some cases. Here, on every issue that the Supreme Court has said and spoken very clearly and categorically, the lead speaker of the Congress party says he still has a view which has all been thrown out by the Supreme Court because each one of those contentions was raised before the court. Madam, there are some people who have a natural dislike for truth. This is a case where there is a natural dislike for truth. From the first to the last word, every word spoken in the last 6 months on this subject, including in this House, is utterly false. My learned friend who spoke has a legacy. That legacy had manufactured for the late Mr. V.P. Singh's son a foreign bank account in St. Kitts. It was proved to be false. On the last occasion, he manufactured a conversation between himself and the French President Macron. The French government officially denied it. He repeats the same falsehood today. Today, he tried to produce a tape or a document which the rules don't permit. He was too scared to authenticate it because he knows that his party manufactured it. And he knows fully well that both the Health Minister of Goa and the Chief Minister of Goa have already said that this is complete fabrication and there must be an inquiry as to how the Congress party manufactured it. I will now list out each of the incorrect and the false, inaccurate statements he has made. The manner in which he takes liberties for the truth is absolutely unprecedented. He says, and this is the case being made out, the procedure is wrong. There was no negotiating committee. There was no contract or price negotiating committee. There was no Defense Acquisition Council. There was no Cabinet Committee on Security. One man decided the transaction. He then says, and this is what I have publicly referred to as an arithmetic which a kindergarten child understands. एक 500 का था जो हम ला रहे थे, जो ये लाए वो 1600 का है. It only shows, and it's a tragedy for this country, that the grand old party of Indian politics, the Congress party, which has in the past been headed by great legends, is today headed by a gentleman who doesn't even have a basic understanding of what a combat aircraft is. And
now what I'm going to say next. And I'm not yielding, madam. When they've heard falsehood, they must also hear the truth. Nothing will go on record like this. Only minister statement. आप झूठ सुन सकते हैं, सच्चाई भी तो सुनिए. सच्चाई सुनने में क्यों तकलीफ आ रही है? और इसके पीछे कारण है. ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है. और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं. Madam, since my friend laid down a precedent to say that no names can be taken, but abbreviations can be used, when he was a young man, was he playing in the lap of one Q? About whom, in the Bofors case, the CEO of Nobel Industries, which manufactured the Bofors gun, had in his diary written, Q must be protected at all cost. And subsequently, the bank account in favor of Q was discovered. They understood commerce and the arithmetic. खड़गे जी बहुत दर्द हो रही है, सच्चाई है. खड़गे जी सुनिए, इसके बाद खड़गे जी सुनिए सच्चाई को, ये सच है. Madam, what is the National Herald case about? How a public property meant for a trust is converted into a private property of a family, शेम, for which गांधी परिवार चोर है. the members of the family are today out on bail. माँ बेटा चोर Why है. was बेटा चोर है. Madam, why was the gentleman in custody today of our investigating agencies sending emails in 2008-2009 when the Augusta Westland deal was being negotiated and referring to Mrs. Gandhi, our Italian lady, son of Italian lady, the son will speak to the mother. Who is this Italian? Why was it happening? अरे कौन है The ये? reason is that they did not understand. They did not understand national security. They only understand paisa, to use his own word. बहुत बढ़िया. कांग्रेस का अपनी डेरा बाहर आ रहा है. Madam, if there was one case, I may have given that family the benefit of doubt. But if in Bofors the finger points to you, if in National Herald the finger points to you, if in Augusta the finger points to you, then 3 is a bit too much. Madam, do we remember when it is 3 times? Madam, when it is 3 times, I am sure Shri Rahul Gandhi in his earlier days was seeing the James Bond films. James Bond had said, if it is once, it's a happenstance, it can happen. If it is twice, it is a coincidence.
And if it is thrice, it's a conspiracy. And the conspirators of various defense deals today have the audacity to raise an allegation against others. अध्यक्ष महोदया, ये रफेल का मामला क्या है? रफेल का जहाज किस लिए इस देश को चाहिए था? रफेल किस लिए चाहिए था इस देश को? आपको याद होगा जब कारगिल का युद्ध हुआ तो कारगिल के युद्ध के दौरान हमारी सेना केवल 155 mm बंदूक का इस्तेमाल करती थी पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए दुश्मन को। अगर उस वक्त हमारे पास रफाल जैसा मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता तो 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल उनको वहां से उड़ा सकते थे। और यही कारण था कि देश की फौज ने 2001 में कहा हमें चाहिए और 2001 में सरकार ने इसको मंजूरी दी। 2003 में यह कहा कि यह बहुत आवश्यक है। यूपीए सरकार ने भी आते ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी कि देश की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। गलत बात है, अपनी सीट पे जाइए प्लीज, गो टू योर सीट। जब यूपीए सरकार ने यह अनुमति दे दी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को, तो उसके बाद सन 2007 में इसके लिए टेंडर बुलाए गए। सरकार दो तरीकों से डिफेंस एक्विजिशंस करती है, या टेंडर के मामले से करती है या इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के माध्यम से करती है। सरकार के बीच में समझौता होता है। 2007 में जब यह निर्णय हो गया तो 6 लोगों ने बिड दी। 2 लोगों की बिड टेक्निकली सूटेबल फाइट की गई, डसॉल्ट की जो रफाल बनाते हैं और यूरोफाइटर की। ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। उसके बाद उनकी प्राइस बिड दोनों की खोली गई। प्राइस बिड खोलने के बाद सबसे L1 जो था वो रफाल को पाया गया। और जितनी भी सरकार की कमेटियां थी, एयरफोर्स थी, सब ने ये कह दिया कि हमें ये रफाल की बंदूक चाहिए, ये जहाज चाहिए जिस पे वेपन लगे हुए हैं। और ये रफाल की एयरक्राफ्ट जो हमें चाहिए, ये 2012 में ये इनकी सरकार के जो रक्षा मंत्री थे उनकी मेज पर गया। नाउ देयर इज अ स्पेशलिटी about the UPA in decision making. The speciality is if the aircraft being selected is not the one whose commerce you have dealt with or understood, then delay the transaction, make it impossible. There were 2 competitors. I've been listening to a version of one to different bouts for the last 6 months. When it went to the table of the Raksha Mantri, he was a simple man. He realized he was being pressurized by the Air Force that we need Rafale. He was pressurized by his colleagues, perhaps otherwise. The Raksha Mantri was a simple man, everybody knew. So what he did was, when the recommendation during UPA went to him, he notes on the file, L1 is approved, Rafale is approved, but the process by which it has been found to be L1 should be re-looked into. मैं मंजूरी देता हूं रफाल को, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय हुआ है उस पर पुनः विचार कर लिया जाए। वो एक सीरियल आता था BBC में, यस मिनिस्टर। यस मिनिस्टर में कहते हैं सबसे नाकाबिल मंत्री वो होता है, सबसे नाकाबिल प्रशासक वो होता है जो कभी फैसला नहीं कर पाता।
वो सरकार ऐसी थी। उसके संबंध में, प्रधानमंत्री के संबंध में इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लिखा था, अ प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस बट नॉट इन पावर। और वो रक्षा मंत्री ऐसे थे जिनकी हर नोटिंग होती थी ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। एक हाथ सेना की आवश्यकता थी, दूसरा हाथ पार्टी की आवश्यकता थी। और इसलिए राफाल को मंजूरी, बट प्रक्रिया पे पुनः विचार हो। और ये करते वक्त मेरा ये आरोप है कि यूपीए सरकार ने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की। अध्यक्ष महोदया, जब ये सरकार बनी तो कुछ समय के लिए मुझे रक्षा विभाग मिला था। मैं जब पहली बार एयरफोर्स के अधिकारियों से मिला तो एयरफोर्स के अधिकारियों ने जो पहली प्रेजेंटेशन मुझे दी कि हमारे दुश्मनों के पास 400 ऐसे कॉम्बैट जहाज हैं, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है और ये आवश्यक है कि हमें तुरंत ये चाहिए। और यूपीए ने तो 2012 में उस कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बढ़ाया। अध्यक्ष जी, आपके कहने के बाद भी मुझे लगता है कि शायद यूरोफाइटर की याद में ये हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं। राजीव सातव जी, नॉट प्रॉपर। नो, आई एम सॉरी। ये डिस्कशन मांगा क्यों? अगर आपको सुनना नहीं था तो डिस्कशन मांगना नहीं था। अध्यक्ष जी, जब नई सरकार बनी तो मैं बतला रहा था कि सबसे पहले ये आग्रह हमें किया गया और आग्रह ये था कि दुश्मन देशों के पास 400 की संख्या में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके बगैर हम क्या करेंगे? इस जहाज के ऊपर जो वेपन लगता है उसकी कॉम्बैट एबिलिटी, उसकी फायर करने की एबिलिटी एक बहुत डिस्टेंस से होती है और ये आवश्यकता थी इस देश को। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बतला रहा था कि इस देश की एयरफोर्स को ये कॉम्बैट हवाई जहाज की जरूरत क्या थी। हवाई जहाज अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। हवाई जहाज केवल एक वाहन है उड़ने का, लेकिन उस पे जो एवियोनिक्स होते हैं, जो उस पे वेपनरी होती है, उससे दुश्मन के मुकाबले में लड़ाई लड़ी जाती है। और इसलिए असली कीमत जो होती है और उसकी असली क्षमता जो होती है, वो जो उसके ऊपर वेपन्स लगे होते हैं उसके आधार पे होती है। मैं अध्यक्ष जी, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति जी, आपने मुझे अपनी सीट्स बदलने की अनुमति दी। और इसलिए क्योंकि एयरफोर्स का आग्रह था कि हमारे पड़ोस में जो देश हैं जिनसे हमारे सैनिक संबंध अच्छे नहीं हैं, उनके पास लगभग 400 के करीब कॉम्बैट जहाज हैं और इसलिए तुरंत हमारी एयरफोर्स को कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत चाहिए। 2001 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और जो लोग नीति निर्माण में हैं, सरकार और शासन चलाने में हैं, सरकारों में हैं, कि उनका दायित्व है कि देश की फौज की भी हम लोग चिंता करें। 2001 से फौज मांग कर रही थी और 2012 में मंत्री जी लिखते हैं कि मैं रफाल को मंजूरी देता हूं, लेकिन जिस प्रक्रिया से यह तय किया है उसके ऊपर पुनः विचार किया जाए। ये 2014 तक कुछ नहीं हुआ और सरकार बदलने के बाद एक बार फिर इस देश की वायुसेना ने इस आग्रह को देश के सामने रखा। यह आग्रह था कि तुरंत इसको लाया जाए। इन सब बैठकों के बाद जब 2015 में प्रधानमंत्री जी गए
और मैं जो राहुल जी ने विषय उठाए हैं अब उसके उत्तर पे आता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे कांग्रेस के मित्र भी, ये देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए गंभीरता के साथ इन विषयों को समझ लें। प्रधानमंत्री जी का जो प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ बैठक हुई और उसमें जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उस प्रेस स्टेटमेंट में था कि हम लोग राफेल इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत खरीदेंगे ऑन टर्म्स एंड कंडीशन विच आर बेटर देन व्हाट वाज ऑफर्ड अर्लियर। जो यूपीए के जमाने में टर्म और कंडीशन थी, उससे बेहतर टर्म और कंडीशन पे करेंगे। यह कहा गया कि प्रोसेस क्या था। यह प्रोसेस था कि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और जो डिफेंस के लोग हैं, इसमें अधिकतर एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, कि किस तरह के एवियोनिक्स और किस तरह की वेपनरी चाहिए, वो तय करने के लिए उनकी 74 मीटिंग्स हुई हैं। ये 74 मीटिंग्स का रिकॉर्ड और उसकी डिटेल सरकार ने, ये जो नोट दिया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में रिकॉर्डेड है कि 74 मीटिंगें हुई है। इन 74 मीटिंग्स के बाद जब समझौता फाइनलाइज हो गया तो वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, रक्षा मंत्री के पास जाता है और मंजूरी देने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे आता है। सारी प्रक्रिया पारित होने के बाद सरकार 2016 में डसॉल्ट के साथ अपना समझौता तय करती है। इस प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? किसी माननीय सदस्य के पास यह अधिकार नहीं है कि यहां खड़ा होकर कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हाथ में है। प्रोसेस पे सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने प्रोसेस एग्जामिन कर लिया है, हम सेटिस्फाइड हैं कि सारा प्रोसेस पूरी तरह से उसका पालन हुआ। दूसरा विषय, और मैं एक बार समझा दूं कि कृपया करके अपने दल की और उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में जिस पद पे हैं उसकी प्रतिष्ठा और गरिमा को मद्देनजर रखिए। ये 500 और 1600 की तुलना क्या है? ये दाम नहीं थे। दाम कैसे दिए जाते हैं? एक दाम होता है बेयर एयरक्राफ्ट का। एयरक्राफ्ट जो मैंने कहा केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो वेपन नहीं होता। दूसरा दाम होता है वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का, जिसपे पूरे वेपन फिट होते हैं। 2007 में एक ऑफर आई। वो 2007 की ऑफर में दोनों तरह के दाम थे और रक्षा मंत्री ने ठीक कहा कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम हमने बता दिया है, लेकिन वेपनाइज्ड का हम दाम बताएंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाता है कि आपके पास किस तरह के वेपन हैं, और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट का भी उल्लंघन करेंगे। और इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में केवल एक विषय याद रखा जाए कि प्राइस फर्म नहीं होता। 2007 का भी फर्म नहीं था, उसमें एस्केलेशन क्लॉज था। हर साल इतना दाम बढ़ेगा, वो एस्केलेशन क्लॉज था। उसके बाद जब दोबारा बातचीत हुई तो दोबारा बातचीत के बाद दोबारा से बेसिक एयरक्राफ्ट की कीमत और उसके साथ साथ वेपनरी की कीमत और वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट की कीमत, ये दोनों की दोनों पे सरकार ने तय किया और इस पे समझौता हुआ। मैं बिना इस बात के इसको यकीनन कह सकता हूं, बिना किसी खंडन के डर से, कि बेसिक एयरक्राफ्ट का दाम 2016 की तारीख में यूपीए के दाम से 9% सस्ता था। वेपनाइज्ड एयरक्राफ्ट का दाम यूपीए के दाम से 20% सस्ता था। और कम से कम उस समझौते को एंटनी साहब से आप समझ लेते, यूपीए का जो समझौता था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करोगे तो 11 साल लगेंगे सप्लाई करने में। अगर ये 11 साल की जानकारी होती तो आज ये तर्क ना दिया जाता कि 2016 में हुआ, 18 तक क्यों नहीं आए 2 साल में। अरे तुमने तो 11 साल का समय दे रहे थे। और ये जो मैं कह रहा हूं 9% और 20%, ये केवल पहले जहाज के बीच का अंतर है। जब दूसरा, चौथा, 8वां और 18वां आएगा तो जो एस्केलेशन क्लॉज आज तय हुआ है
वो इनके एस्केलेशन क्लॉज से सस्ता है, तो हर सक्सेसिव जहाज के लिए ये 9 और 20 का जो दाम है ये अपने आप में बढ़ता जाएगा। दाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, अगर ये चाहें तो मैं इनको पढ़ के भी बता सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने पहले तय किया कि हम दाम को नहीं देखेंगे, बाद में हम अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए टू सेटिस्फाई द कॉन्शियस ऑफ द कोर्ट हमने दाम मांगा। सरकार ने दाम सील्ड कवर में हमें दिया, हमने सील कवर खोल के पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने के बाद हमें लगा कि इस केस में हस्तक्षेप करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्शियस सेटिस्फाई हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुनावी जरूरत उससे सेटिस्फाई नहीं हुई। अब तीसरे विषय पे आ जाएं। Shashi, I would expect much better for you, having known you for 45 years. Please, at least you always read and write. And therefore, Those who can't. and therefore, please read the judgment of the Supreme Court. The judgment says, we asked for the price in order to satisfy the conscience of the court. The government placed the price before us. We opened the envelopes, we read the price. And after going through it, we don't think it is a case where we would like a judicial review of the pricing at all. That is what the Supreme Court says. Madam, let me now come. अब मैं आके तीसरे विषय पे भी इनको बतला दूं। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय क्या है कि क्या आपने किसी एक औद्योगिक घराने को लाभ दिया है? ये ऑफसेट क्या होता है? ये मुझे खेद है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ऑफसेट की जानकारी नहीं है, ये क्या होता है। और इस पे आंकड़ा देखिए, इस सदन में माननीय अध्यक्षा जी, आप रोज देखते हो एक आंकड़ा लिखा होता है 1,30,000 करोड़। ये 1,30,000 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग क्या हुई? My assessment is the Congress party strategy, whose hands are soaked in Bofors, in Augusta, in National Herald, if they can't find an allegation of corruption against the NDA, let us manufacture one and let us invent one. That is their strategy. ये 1,30,000, ये 30,000 ये कहां से आया? ऑफसेट का अर्थ है, और ये यूपीए की पॉलिसी थी 2005 की, और ये नीति ये थी कि अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट किसी से विदेशी से खरीदते हैं तो 30% से लेकर 50% तक उसे कहेंगे कि आप कोई सामान हिंदुस्तान में खरीदिए। वो सामान इस जहाज के लिए नहीं होगा, आपके किसी और काम का होगा। उन ऑफसेट सप्लायर से खरीदिए। आप उन ऑफसेट सप्लायर्स की वो लिस्ट बनाता है, और जब जब हम खरीदेंगे, पहला जहाज अगर 2019 में आता है तो उस जहाज की कीमत के अनुकूल 30% से लेकर 50% तक का उनको खरीदना पड़ेगा। पहली ट्रांजैक्शन में 30% होता था, रफाल में 50% है। ये अलग अलग ऑफसेट सप्लायर से खरीदता है। कौन खरीदेगा? डसॉल्ट। वो कौन सप्लायर है, कौन तय करेगा? डसॉल्ट। उनकी चॉइस है। अब कितने होंगे ऑफसेट? 58,000 करोड़ का पूरा डील है। ऑफसेट हुए 29,000 के अगले 10 साल तक टोटल। उसमें 100-120 ऑफसेट सप्लायर होंगे। जिस कंपनी का नाम लिया गया, डसॉल्ट ने कहा हम उनसे 3 या 4% खरीदेंगे। 3 या 4% बनता है 800 करोड़। उस 800 करोड़ को कह दो वो ऑफसेट सप्लायर है,
राहुल जी मानते हैं कि वो रफाल का मैन्युफैक्चरर है। इनका ज्ञान तो एबीसी से शुरू करना पड़ेगा। वो ऑफसेट सप्लायर है। और कितने का टोटल ऑफसेट? 29,000 के, किसी से 200 करोड़ के, किसी से 500 करोड़ के, किसी से 800 करोड़ के। और यहां क्या लिखा है? 1,30,000 करोड़, 30,000 करोड़। ट्रांजैक्शन 58,000 करोड़ का है, ऑफसेट हो गए 1,30,000 करोड़ के। मतलब इतनी नासमझी एक ऐसे दल में जिसने 60 साल तक देश पे हुकूमत की हो, इसकी कम से कम हमें अपेक्षा नहीं थी। अब यह विषय उठाया गया, इनका अंतिम विषय था, क्या आपने HAL से क्यों नहीं बनवाए? मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं। ये तो HAL वाला कॉन्ट्रैक्ट कि 18 वहां से आएंगे और 108 HAL बनाएगी। यूपीए ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द क्यों कर दिया और वो आगे क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार बाकी का क्या करना है उसके आगे प्रोसीडिंग्स कर रही है। उसके टेंडर आ रहे हैं, कौन किसको जाएंगे वो तय होगा, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हो गए। क्या कारण था कि यूपीए के हाथ ठंडे हो गए थे कि हम इसको एग्जीक्यूट करें? और इनके जो मंत्री थे वो लिख रहे थे कि इसको उस पर लिख रहे थे कि ये पुनः विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है पेज 15 पे, उस वाक्य कहता है कि HAL की और सरकार की, HAL की और डसॉल्ट की बातचीत पूरी नहीं हो पाई। उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। क्या कॉम्प्लिकेशन था? मैं राष्ट्रहित में केवल एक का जिक्र करूंगा। हमारा पब्लिक सेक्टर इसको बनाए, हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन हमारी सेना को शीघ्र कॉम्पैटिबिलिटी बने, वो भी राष्ट्र का हित है। दैट इज ऑल्सो पब्लिक इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है पेज 15 पे? क्या कॉम्प्लिकेशन थी? और ये यूपीए के दौरान की कॉम्प्लिकेशन थी, एनडीए की नहीं। दीज हैव बीन सेट आउट एज अंडर मैन आवर्स दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द एयरक्राफ्ट इन इंडिया। HAL required 2.7 times higher man hours compared to the French side for manufacture of aircrafts in India. HAL ने यूपीए को कहा कि 2.7 टाइम ज्यादा मैन आवर समय लगेगा, और तब तक पाकिस्तान और चीन कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा ले और हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स प्रतीक्षा करती रहे। और जब समय 2.7 टाइम्स बढ़ता है तो दाम भी बढ़ता है। और इसलिए सारी सेना ये कह रही थी, एयरफोर्स ये कह रही थी कि मुझे ये तुरंत चाहिए, और तुरंत इसलिए चाहिए कि मुझे अपनी स्क्वाड्रन एबिलिटी बढ़ानी है। ये सार्वजनिक रूप से आया हुआ है कि इस कारण से जो यूपीए के 10 साल थे वो कारण एक अपने आप में बने कि हमारे एयरफोर्स की स्क्वाड्रन एबिलिटी धीरे धीरे कम होती गई है। और जब उस स्क्वाड्रन एबिलिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसमें इस प्रकार की देश हित के खिलाफ रुकावटें पैदा की जाती हैं। अध्यक्ष जी, मैं अंतिम विषय पे आता हूं कि जेपीसी क्यों नहीं हो सकती। जब इसमें विषय क्या है? प्रोसेस, प्राइसिंग, ऑफसेट, HAL सब पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो इस फैसले के विरुद्ध जाना, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी इस फैसले के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे सकती है? ये पॉलिसी इशू नहीं है। जो PIL फाइल की वो इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी। ये पॉलिसी का विषय नहीं है कि हमें कौन सा जहाज खरीदना है, कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। दिस इज नॉट अ पॉलिसी मैटर, दिस इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव और अ गवर्नेंस मैटर। It's an investigation whether it's a clean deal or not a clean deal. The Supreme Court has said we have satisfied our conscience after seeing the prices. We have found the process was perfect. They have recorded why the HAL dialogue was abandoned. They have recorded that offset suppliers are decided by Dassault. ये सब फैसला करने के बाद जब ये सारे निर्णय हो गए तो उसमें जेपीसी के लिए क्या बना था? मैं केवल आपको एक दुनिया के लोकतंत्रों का एक प्रेसिडेंट बता दूं। जेपीसी सांसद होते हैं, पॉलिसी मैटर में तो हम एक मत के हो सकते हैं,
इन्वेस्टिगेटिव मामलों में हम पार्टी लाइन पे बट जाते हैं। जो पार्टीशन बॉडी है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। इसका एक उदाहरण याद करिए। मैं फिर एक बार बोफोर्स पे आता हूं। इस संसद ने बोफोर्स की जांच के लिए, कांग्रेस पार्टी पावर में थी, एक शंकरानंद जी की चेयरमैनशिप में जेपीसी बनाई थी। अब तो साबित हो गया कि बोफोर्स में कमीशन मिले, खाते पता चल गए, वो सारे सरकार के रिकॉर्ड पे हैं, सीबीआई के रिकॉर्ड पे हैं, करप्शन हुआ। पर जेपीसी ने क्या कहा था? शंकरानंद जी की जेपीसी ने, दीज आर नॉट किकबैक्स, these are winding up charges. The JPC whitewashed the whole allegation of corruption. That JPC was a fraud on the parliamentary process. And this JPC is being sought by those who represent the legacy of Bofors to indulge in another fraud. The reason being, because our hands are soaked in corruption. You are a clean government. Let me invent an allegation of corruption against you. This has been the entire burden of their song, and therefore there can be no JPC at all in this transaction. Thank you, madam.